अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी का एक टॉपिक है हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोलॉजी बेसिकली होती क्या है। अ साइंस डीलिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन एंड बिलो द surface of the land and in the atmosphere. So basically in hydrology we study the characteristics, the distribution of water and circulation of water which may be above or below the surface of land. तो हाइड्रोलॉजी में हमने पानी के बारे में पढ़ना है, चाहे वो सरफेस के ऊपर है या सरफेस के नीचे है। सो वी कैन बेसिकली से दैट हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर इन नेचुरल सिस्टम्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। यानी कि हमने रिवर्स और स्ट्रीम्स के बिहेवियर को पढ़ना होता है इसमें, और इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनास हैं वो हमने पढ़ने होते हैं। दिस इज़ द पिक्चर विच क्लियरली शोज व्हाट हाइड्रोलॉजी रियली इज़ अबाउट। सो देयर आर लॉट ऑफ फिनोमिनास विच आर शोन इन दिस पिक्चर। For example, evaporation, infiltration, precipitation, sublimation. These are all phenomena which relate to hydrology. So in hydrology, we try to study all these phenomena. इस तरह के जितने भी phenomena हैं वो सारे के सारे जो है वो हाइड्रोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते होते हैं। So now let's move on to hydrograph. What is hydrograph? The graphical relation between rate of flow, which is also known as discharge, and time at a specific point or section is known as hydrograph. तो हाइड्रोग्राफ बेसिकली क्या है, ये एक रिलेशन है बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम, जो कि किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ये किसी भी सेक्शन पे हम ले सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे जो हमारा रिलेशन होगा डिस्चार्ज और टाइम का, उसको हम हाइड्रोग्राफ बोलते होते हैं। So hydrograph is a graph that represents the flow or discharge of water in a river or stream over a specific period of time. So this is a graphical representation of the relationship between the rate of flow of water and time, typically showing the changes in water level. It shows the changes in water level or discharge during and after a rainfall event. Means जब भी एक rainfall event होगा तो उस वक्त जो हमारा discharge होगा टाइम के साथ साथ जो हमारा डिस्चार्ज होता है, इसका जो हम रिलेशन बनाते हैं, ग्राफिकल रिलेशनशिप जो हमारा बनता है, इसको बेसिकली हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। सो हाइड्रोग्राफ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स which are rising limb, crest or peak, and the falling limb. The rising limb is shown here in the BC section of the graph. The BC part of this graph basically shows the rising limb. The rising limb is the rising part of the graph. This portion of the hydrograph shows the initial increase in river flow or discharge after a rainfall event. As precipitation falls onto the watershed, it starts to enter the river system, resulting in an increase in water level. Here you can see the increase in water level as shown by the graph. The rising limb of the hydrograph represents the rapid response to rainfall. As the rainfall increases, the rising limb of the hydrograph will also increase. So when rainfall occurs, the river flow will increase, and at a certain point it will reaches its maximum value. The maximum value or the maximum point of the hydrograph, which is shown here, is known as the peak or crest of the hydrograph. And then the falling limb or recession curve, which is basically same as rising limb, but it is the falling part of the graph. So here the falling part, which is shown by CDE points, is basically the falling limb or recession curve. After the peak flow is reached, the water level or discharge gradually decreases as the excess water drains out of the watershed. This recession period is represented by the recession limb of the hydrograph. The shape and duration of the recession limb can provide insights into the storage and drainage characteristics of the watershed. तो ये जो है वो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। राइजिंग लिम्ब जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो राइजिंग पार्ट होता है, सी जो है वो इसका पीक या फिर क्रस्ट जिसको बोला जाता है, जो कि मैक्सिमम हमारा जो पॉइंट होता है हाइड्रोग्राफ का, वो रिप्रेजेंट करता है पीक या फिर क्रस्ट को। और फिर उसके बाद थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो होता है वो इसका फॉलिंग या फिर रिसेशन का होता है, जो कि फॉलिंग पार्ट होता है बेसिकली ग्राफ का। अब ये जो शेप और इसकी जो ड्यूरेशन होती है हाइड्रोग्राफ की, ये बेसिकली हमें करेक्टरिस्टिक्स बताती होती है वाटरशेड की। यानी हमारे पास ये जो ड्यूरेशन है और ये जो पीक है, ये हमें मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो जानने में हेल्प करता है। सो द शेप ऑफ द राइजिंग लिम्ब डिपेंड्स अपॉन द स्टॉर्म करेक्टरिस्टिक्स विच आर द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एट्सेट्रा।
अब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जितना ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये जो हाइड्रोग्राफ की विड्थ है ये ज़्यादा होती जाएगी। ये जो बी और ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती जाएगी, जो कि ड्यूरेशन को शो करेगी। ड्यूरेशन जो है वो जितना ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन जितना कम होगा, इसका गैप उतना ही कम होगा। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो हमारे जो ये जो राइजिंग लिम्ब है इसको इफ़ेक्ट करता है। जो इंटेंसिटी है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जल्दी ये जो है वो राइज़ करेगा, ठीक है, उतना ही इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती जाएगी। और जो इंटेंसिटी है वो कम होगी तो ये भी कम होगा। सो वी कैन से दैट ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द हाइड्रोग्राफ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द हाइड्रोग्राफ। और एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है ये भी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है हाइड्रोग्राफ को, कि जो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी वाटर कितने एरिया तक जो है वो फैला हुआ है। अब जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो वाटर शेड के अंदर पानी आएगा, और जितना जो है एक एरियल डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा उतना ही पानी कम होगा। द क्रस्ट सेगमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स इन द एरिया विच फर्दर डिपेंड्स अपॉन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया। सो ये जो क्रस्ट है पीक पॉइंट, ये डिपेंड करता है जियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि आपका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है एरिया का वो किस तरह का है। जितना स्टीप स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो क्रस्ट का राइज़ होगा, यानी क्रस्ट जो है वो बहुत जल्दी राइज़ कर जाएगा। और अगर जो आपका एरिया है वो इस तरह का एरिया के जो मैदानी एरिया होगा, ठीक है, इस तरह का लैंड हो जो कि स्टीप स्लोप ना हो बल्कि जो स्लोप है वो बहुत कम हो, तो उसमें जो है वो क्या होगा, जो राइज़ है पीक है वो जल्दी अचीव नहीं होगा। सो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर जो क्रस्ट है वो आपका डिपेंड करता है। द स्टीपर द स्लोप द मोर विल बी द क्रस्ट और पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ। द फॉलोइंग लिम्ब डिपेंड्स अपॉन द कंट्रोल ऑन स्टोरेज रिलीज विच इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब ये स्टोरेज रिलीज़ यानी कि जो वाटर शेड के अंदर जो पानी आ रहा है उसको जो है वो पानी जब जा रहा होगा, जो पानी जो है वो निकल रहा होगा वाटर शेड से, उसके ऊपर डिपेंड करता है फॉलिंग लिम्ब, जो कि अगेन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह है, रिवर का या स्ट्रीम का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। अब अगर वाटर जल्दी से जो है वहाँ से निकल जाता है, ठीक है, जल्दी से रिलीज़ होगा, तो उसी तरह से जो हमारा शेप है वो वेरी करेगा। जो फॉलिंग लिम्ब की विड्थ है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वाटर जो है वो हमारा किस तरह से रिलीज़ हो रहा है। अब हाइड्रोग्राफ के रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं कि वो क्या हैं, जैसे कि लैग टाइम, टाइम टू पीक, रेनफॉल ड्यूरेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। और ये जो है वो इसके साथ एक ग्राफ जो है वो शो किया गया जो कि हाइड्रोग्राफ प्रॉपर्टीज़ और ये जो हाइड्रोग्राफ डेफिनेशंस हैं इसको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। For example, lag time interval from the center of mass of the rainfall excess to the peak of the resultant hydrograph। तो टाइम लैग जो है वो यहाँ पे ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है L से। ये जो पीक है हाइड्रोग्राफ का, दिस इज़ द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ द रेनफॉल एक्सेस। यानी ये जो आपको शो हो रहा है, ये डायगनल लाइंस से जो शो हो रहा है, ये जो है वो रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेनफॉल एक्सेस जो है वो कितनी थी। ये रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है, यानी ये यहाँ से जो है वो रेनफॉल स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, तो ये जो है वो उसकी ड्यूरेशन है। अब इसका जो सेंटर है, सेंटर से लेकर जो पीक है हाइड्रोग्राफ यहाँ तक का जो आपके पास डिस्टेंस है, ये जो है वो लैग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो टाइम है हमारा लैग टाइम है। फिर टाइम टू पीक, यानी पीक को अचीव करने में कितना टाइम लगा है, इसको हम टाइम टू पीक बोलते हैं। तो ये रेनफॉल जहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल टू द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ, यहाँ तक जो हमारा टाइम है इसको टाइम टू पीक बोलेंगे। टाइम इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेनफॉल एक्सेस टू द पीक ऑफ रिजल्टेंट हाइड्रोग्राफ। सो इट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस और द टाइम इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल एक्सेस टू द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ। रेनफॉल ड्यूरेशन यानी कितना टाइम था रेनफॉल का, वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट हो रहा है, टाइम इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। तो ये जो डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेनफॉल ड्यूरेशन, यानी ये स्टार्ट से लेके एंड ऑफ द रेनफॉल एक्सेस, दिस इज़ बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम इंटरवल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेनफॉल एक्सेस टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द हाइड्रोग्राफ रिसेशन कर्व।
यानी कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आपका जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे वो TCC है। और ये क्या होता है, एंड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, जहाँ पे आपकी रेनफॉल एंड कर जाएगी वहाँ से लेकर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, रिसेशन कर्व के इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक का जो हमारा ड्यूरेशन है या टाइम इंटरवल है, इसको बेसिकली टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलेंगे।